Hello. Today we shall discuss about the phase rule, or you can say Gibbs phase rule. So actually there are two types of the system. One is the homogeneous system, second is heterogeneous system. So in the heterogeneous system, how we can understand the specific condition under which internal equilibrium exists. Suppose we have solid, liquid and vapor. So what are the conditions under which there is an equilibrium between solid and liquid, or between solid and vapor, or between liquid and vapor? So in this way, this phase rule is the tool to understand the quantitative understanding about the equilibrium in the heterogeneous system. Actually, Gibbs applied thermodynamics, and he proved that there is a mathematical relation between variables which are known as the degree of freedom, we shall discuss, component and phases. So actually, as I have shown here, the study of phase rule is a tool to the equilibrium in the heterogeneous system. Mathematically, we can say that phase rule is a relation between phases, components and degree of freedom. तो जैसा हम यहाँ फिगर के द्वारा ये शो कर रहे हैं कि सपोज वी कंसीडर वाटर. So under different conditions, water may be solid, water may exist as liquid, and water may exist as vapor, and also all these phases can exist together in certain condition. So the study of all these is the study of the system, and such type of the study is called as the phase rule. So Gibbs gave mathematical relation like this: F is equal to C minus P plus 2. F is equal to C minus P plus 2. This is the relation between here. F is the degree of freedom. You can say F is equal to degree of freedom. We shall define later on degree of freedom. C, number of components, and P, number of phases. So I have written here F is equal to C. This is the phase rule, mathematical form of the phase rule, where F is the degree of freedom, C number of the component, and P is the number of phases. Just I have shown you that this is the one phase, solid phase,
this is the liquid phase, this is the vapor phase, and there are different equilibrium present in the system. So we shall discuss the water system later on, लेकिन हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा फेज रूल के समझने में आपको इन टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा, फेज क्या होगा। तो आप बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि हेट्रोजीनियस सिस्टम है तो इसमें फेज किसे कहा जाएगा। तो पहली बात हम ये लिखेंगे कि फेजेज ये फेजेज क्या है। तो कहता है कि फेज इज ए होमोजीनियस पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम। जैसे कि अगर तेल और पानी को मिला दिया जाए तो यू विल क्लियरली सी दैट ऑयल इज फ्लोटिंग अबव द वाटर। So clearly you will find that there are two phases, one is the liquid oil and second is the water. So similarly in case of water system, if there is a ice, liquid water and vapor, so in this way we can say this is the phase, this is the phase, this is the phase, this is homogeneous and this is the homogeneous, this is the homogeneous. So we can say the phase is the homogeneous part of the heterogeneous system पड़ेगा। तो हमने ये आपको बताया कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें चेंज हुआ, उसी प्रकार से अगर हम दो मिसिबल लिक्विड मिला दें, मिसिबल मिलने वाला एक दूसरे, जैसे वाटर अल्कोहल मिला दीजिए तो क्या होगा, दोनों मिल करके होमोजीनियस सिस्टम बना दिया, ये कहीं फेज बना। तो उसके लिए फेज रूल अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि देयर इज नो इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार से गैस को अगर आप मिला देते हो तो क्या होगा, गैस को मिला दोगे तो गैस एक दूसरे से मिल जाएंगी, एक ही फेज बनेगा, तो वहाँ भी फेज रूल के अप्लाई करने का कोई औचित्य नहीं है। वी डोंट अप्लाई फेज रूल बिकॉज फेज रूल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेजेस को आप बता सकते हो। जैसे अभी बताया कि सॉलिड है, आइस एक फेज है, दूसरा फेज है, और वाइपर तीसरा फेज है। अब इसके बाद आता है दूसरा टर्म कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या कहलाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि F = C - P+2 वेयर C इज़ द कंपोनेंट। तो फेज रूल में कंपोनेंट क्या है, दो वर्ड्स हैं जिसको कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक कंस्टिट्यूएंट होता है, एक कंपोनेंट होता है। तो कंस्टिट्यूएंट का माने हुआ कि जितने भी पार्ट हैं सिस्टम में वो सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट होंगे, लेकिन सारे कंपोनेंट नहीं हो सकते हैं। तो कंपोनेंट के लिए क्या परिभाषित किया गया है कि कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स एट इक्विलिब्रियम by means of which composition of each phase can be explained by means of chemical equation। अब हम कोई रासायनिक समीकरण बना सकते हैं, बना करके रासायनिक समीकरण में ये बता सकते हैं कि इसमें कंपोजिशन किसी फेज का क्या है। तो एक्चुअली हमारा जो ये कंपोनेंट है ये मेनली ये एक्सप्लेन करता है कि रासायनिक समीकरण के माध्यम से कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द ए पर्टिकुलर फेज। तो कंपोनेंट को हमको जानना पड़ेगा कि कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट की मिनिमम वो संख्या है जिस संख्या के द्वारा हम फेज के कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन फेज को जो कि इक्विलिब्रियम में है। मैथमेटिकली वी कैन राइट द नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू
नंबर ऑफ द स्पेसीज माने कंस्टिट्यूएंट माइनस ई माने इक्विलिब्रियम इक्वेशन की संख्या। ये मालूम रहे तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि एन क्या है। यह नंबर ऑफ द स्पेसीज माने कंस्टिट्यूएंट है और ई क्या है, नंबर ऑफ द इक्वेशंस हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में कितने इक्वेशंस होंगे। लेकिन दो तरह के होते हैं कंस्टिट्यूएंट। तो ये कहता है कि ये नॉन आयनिक है। कोई भी नॉन आयनिक कंस्टिट्यूएंट है तो ये फार्मूला लागू होगा, लेकिन आयनिक है तो ये फार्मूला लागू होगा जहाँ C = n-e+1। आयनिक नॉन आयनिक का माने आपको हम समझा दें। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक करता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट नॉन आयनिक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड को पानी में आप डाल दें तो सोडियम क्लोराइड विल चेंज इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक है। तो आयनिक अगर कंस्टिट्यूएंट हैं तो उसके लिए कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। मीन्स 1 हम बढ़ा देंगे, हियर n-e है, यहाँ पर n-e+1 कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये हम दिखा सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या है, स्पेसीज कितनी है, 1, 2 और 3। 3 स्पेसीज है तो n की वैल्यू हो गई 3। एक समीकरण जो इसमें इक्वेशन बन रहा है, इसमें एक इक्वेशन है 1, तो e का वैल्यू हो गई 1। तो आप इस फार्मूले में अगर रख दें n और e की वैल्यू तो 3 - 1 = ये जो है हमारा, ये जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, अगर ये पूछे कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है तो बड़े आराम से आप इस बात को कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, या वैसे भी कर सकते हो कि ये 3 कंस्टिट्यूएंट है, एक इक्वेशन है, तो n-1 3 - 1 = 2। सो दिस इज द 2 कंपोनेंट सिस्टम। वैसे भी आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू कंसीडर एनी 2 ऑफ द 3 कंस्टिट्यूएंट, you can frame the chemical equation and you will satisfy the composition of each phase with the help of a chemical equation in which plus, minus and zero signs are permissible. So in this way you can also explain the component. अब ये कंपोनेंट जो है, इसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली आपने वेरिएबल नाम तो सुना होगा। कॉमनली जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो वेरिएबल जो है वो मेरा है प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो ये जो वेरिएबल हैं, माने ये भिन्न भिन्न कंडीशन में भिन्न भिन्न होते रहते हैं, जिनको वेरिएबल कहते हैं हम। ये चेंज होगा, लेकिन ये जो वेरिएबल हैं क्या वही डिग्री ऑफ फ्रीडम कराएगा? कहता नो, वेरिएबल और डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़ा अंतर है। कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या कहेंगे, एफ को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज the independent variables, number of independent variables. तो degree of freedom of a system, any system, is defined as the number of independent variables like pressure, composition या concentration and temperature. So these are the 3 independent variables. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, मिनिमम नंबर
तो कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक इतना एंड these variables can specify to describe the system completely. अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है तीनों वेरिएबल को एक साथ देख के कंसिडर करेंगे। तो किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए वो जो मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या है उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि सपोज करिए कि आइस वाटर एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। तो आइस वाटर एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम लाइक दिस। दिस इज द आइस। सपोज यू कैन राइट आइस, दिस इज द आइस and this is the liquid water. You can say water and this is the vapor. अब ये तीनों जो फेज हैं वो इक्विलिब्रियम पर हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस ओ पॉइंट पर ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर होगा। जस्ट सी हियर, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर होगा लाइक दिस, और इसके करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर होगा। तो अब जो है इसमें यह टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफिक है। इसी स्पेसिफिक प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम होगा। तो ये जो वेरिएबल हैं वो स्पेसिफिक नंबर है, जिस स्पेसिफिक वेरिएबल पर हम डिफाइन कर सकते हैं द इक्विलिब्रियम बिटवीन नंबर ऑफ फेजेज। हो सकता है दो ही फेज हो, जैसे कि ए ओ है, तो ए ओ पर आपको दो इक्विलिब्रियम, इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम ये मिलेगा कि यहाँ पर आइस है, यहाँ पर वेपर है, तो आइस वेपर इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो कर्व ए ओ दिखा रहा है, ये ए ओ क्या है, इक्विलिब्रियम है इसके बीच में। अब इस पे ये हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर और टेम्परेचर होगा। तो कहता है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। बड़े आराम से आप बता सकते हैं, अभी डिस्कशन किया जाएगा इस बात का कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो ना कि टेम्परेचर बढ़ाते जाइए वेपर प्रेशर अपने आप बढ़ता जाएगा। तो आप एक ही चीज़ वेरी कर रहे हो, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक वेरिएबल हुआ जिससे कि यह पूरा ए से लेकर के ओ तक पहुंचेगा, जहां पर आइस एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। वी शैल डिस्कस वन बाय वन। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल संख्या क्या है, वेरिएबल संख्या वो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनकी कम से कम वो संख्या जो कि हमारे इक्विलिब्रियम को भिन्न भिन्न फेजेस में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करके सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये हो गई इसकी डिफिनीसन। जैसे ये है ना आइस वाटर और इक्विलिब्रियम, अभी फिगर में दिखाया। तो यहाँ पर ये तीनों इक्विलिब्रियम में हैं। और यदि ये हमारा जो वाटर सिस्टम है ये मोनो कंपोनेंट है, तो F = C - P + 2। P क्या है, तीन फेज इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड वाटर एंड वेपर। तो P की वैल्यू 3 हो गई, +2 है, C की वैल्यू 1 हो गई। तो यू कैन कैलकुलेट द जीरो वैल्यू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट O, degree of freedom at point O, here
इज जीरो, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर भी बदलो या टेम्परेचर बदलो या प्रेशर बदलो, ये इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा। कोई न कोई एक फेज जो है वह समाप्त हो जाएगा, दो फेज रह जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यहाँ पर डिग्री, इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा, मतलब कि कोई वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर ये तीन फेज एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ें जानने के बाद फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली जो है ये जो हमारा फेज रूल है, किसी एक सिस्टम पर हम लागू करते हैं तो हमने तीन चीज़ जान लिया है ना, जैसे कि फेजेस जान लिया, कंपोनेंट जान लिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम जान लिया। अब ये इसको हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन राइज होता है कि अप्लाई फेज रूल फॉर मोनो कंपोनेंट सिस्टम, तो वाटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ए मोनो कंपोनेंट सिस्टम। तो मोनो कंपोनेंट सिस्टम के लिए अगर वाटर की बात हम करते हैं तो हाउ टू अप्लाई फेज रूल फॉर वाटर कंपोनेंट सिस्टम। Sometimes it has been asked that give a salient feature of the water system in the phase by the means of phase rule। ये आपका एक वाटर सिस्टम है। वाटर सिस्टम का मतलब है कि इसमें आइस वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है, और इसके लिए अगर हम प्लाट करते हैं कर्व, प्रेशर एंड टेम्परेचर, भिन्न भिन्न प्रेशर लिया जाए और टेम्परेचर लिया जाए, तो यू विल गेट ए बी एंड सी लाइक दिस। यू कैन कंसीडर अनदर पॉइंट्स आल्सो कि ए बी के बजाय आप ये लो कि आप ए ओ कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, या कुछ भी वैल्यू में। हमने मान लिया कि ये एक है, हमने डायग्राम प्लाट किया है at different pressure and different temperature. So this is the ice solid phase, this is the water liquid phase, this is the vapor, this is the vapor phase. So ये फेज डायग्राम हो गया वाटर सिस्टम। अब इसको हम जो साइलेंट फीचर कह रहा है, तो इस फेज डायग्राम के अंदर आप ये देखेंगे कि एरिया भी है, लाइन भी हैं जिसे आप कर्व कहते हो, और पॉइंट्स भी हैं। तो अगर इन सारी एरिया को, लाइंस को, पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस कर दें तो इस पूरे फेज डायग्राम का डिस्कशन हो जाएगा। तो उसी को हम ये कहते हैं कि गिव ए साइलिएंट फीचर ऑफ द मोनो कंपोनेंट सिस्टम और वाटर सिस्टम। तो आप देखो कि हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये कर्व है, ए बी कर्व। सपोज करो कि ये बी कर्व है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया था, मान लेते हैं कि बी कर्व है। तो ए बी सी एंड डी, तो आप देखें कि हम पहले इसको लें, ए बी कर्व को लें। तो ए बी कर्व क्या है? इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वेपर। अब इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा कि यह इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है, तो इसका क्या मतलब है, इस कर्व को हम क्या कहेंगे। तो आप जानते हो कि जब सॉलिड और वेपर मीन्स अगर सॉलिड को आप गर्म करो, हीट करो, तो ये सीधे वेपर में चेंज हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का माने कि ऊर्ध्वपातन हिंदी में कहते हैं लोग, लेकिन इसको ऐसे आप समझिए कि सॉलिड इज चेंज इनटू वेपर। जैसे कि आप कपूर को जलाते हो तो ये मेल्ट नहीं करता है, ये सॉलिड इज चेंज इनटू वेपर। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि बर्फ़ हो, वेपर में भी एक इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें कि विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, आइदर यू चेंज द टेम्परेचर और प्रेशर, ये पॉइंट जो हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मिलेगा, जहाँ की बर्फ़ और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, सीधे ये इसमें चेंज हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसके डिस्कशन में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है ए बी कर्व इट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन कर्व, and at this curve ice and vapor are in equilibrium and degree of freedom will be like this. one component system, phase यहाँ पर 2 है तो you will find 1 minus 2 plus, तो आपको degree of freedom 1 मिल गया. तो very easily you can explain the curve. Now again you can explain the curve BC. This is the curve BC. यहाँ पर आप देखो कि वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम में है, तो इस कर्व के बारे में आप बता सकते हो कि इस कर्व को हम कहते हैं वेपराइजेशन कर्व. क्या कहेंगे? जहाँ वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में होगा, दैट कर्व इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन कर्व. एंड एट दिस कर्व you find that liquid and vapors are in equilibrium and degree of freedom will be 1. By calculation you can see F is equal to C minus P plus 2. 1 is the number of component because water is the monocomponent system. So 1 minus 2 phases are in equilibrium, that is the water and vapor, and you will get 1. So in this way आप इसको डिफाइन कर. अब आता है ये कर्व जो है आपका बी डी कर्व जो है, ये फ्यूजन या मेल्टिंग कर्व कहा जाता है. इस पे आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइस विल चेंज इनटू वाटर. या आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, वेपर प्रेशर को कम करते हो, तो अगेन आइस विल चेंज इन प्रेशर को अगर बढ़ाते हो तो आइस विल चेंज इनटू वाटर. क्योंकि प्रेशर इसमें इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल के आधार पर अगर प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम ऑफ द आइस ज़्यादा है, वाटर का कम है, तो वॉल्यूम कम होगा, तो इसलिए आइस विल चेंज इनटू वाटर. तो इस प्रकार से इसको हम मेल्टिंग कर्व करते हैं. फेज रूल के अनुसार आप इसको डिस्कशन में कर सकते हो कि जो बी डी कर्व है इट इज फ्यूजन कर्व और मेल्टिंग कर्व, and the degree of freedom can also be calculated 1 minus 2 plus 2 like and it is होगा. अब इसके बाद जो एरिया की हम बात करें तो देयर इज वन एरिया ए बी डी, दिस इज द सॉलिड एरिया. अब इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट आप यक्स मान लो, तो इस पॉइंट को हम अगर आइस में है तो यू हैव टू मेंशन प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ. इस पे नहीं, आप इस पे तो कोई एक करो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. तो यू कैन मेंशन ओनली 1 आइदर टेम्परेचर और प्रेशर, बट इन एरिया यू हैव टू मेंशन प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर. सो देयर शैल बी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कहता है कि ये जो एरिया जो है ए बी डी है, ये सॉलिड एरिया है और ये एरिया रिप्रेजेंट करता है सॉलिड फेज ऑफ वाटर, एंड इट शो दैट एनी पॉइंट इन दिस एरिया विल एग्जिस्ट ओनली इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वैल्यूज आर नोन, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी 2. अब आप देखो कैलकुलेशन से एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2 है, तो कंपोनेंट 1 है क्योंकि वाटर मोनो कंपोनेंट है, एक ही फेज है, सॉलिड पूरा का पूरा सॉलिड है, पी की वैल्यू 1 हो गई, 2 तो 1 माइनस 1 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया. तो 2 वेरिएबल से हम किसी भी इस एरिया में अगर पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, तो आपको दोनों बताना होगा, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना होगा कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर विल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन. सिमिलरली आप दूसरी एरिया को ले सकते हो सी बी डी. देखो ये एरिया जो है सी बी डी, ये एरिया वाटर है. Accordingly you can also find out the degree of freedom. Here degree of freedom will be 2. It means water will exist as a water when at a specific temperature and pressure. ऐसा नहीं है कि आप जो भी आप कहेंगे, जैसे आप कुछ लोग ये कहते हैं ना कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, गलत है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं भी कर सकता है, उसके नीचे भी बॉयल कर सकता है,
तो आपको कंप्लीट कैसे बात करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1. तो यू हैव टू मेंशन द प्रेशर आल्सो. सो सिमिलरली वाटर एग्जिस्ट एज ए वाटर, क्योंकि वाटर तो 3 रूप में रह सकता है. वाटर कैन एग्जिस्ट एज ए आइस. अब उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पर ये आइस होगा. आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि वाटर विल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, कितने प्रेशर. तो यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 होगा. सिमिलरली एरिया AOC जो है इसको आप बता सकते हो कि ये वाइपर फेज है. यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, क्योंकि कंपोनेंट वाटर है, एक ही कंपोनेंट है और फेज एक है, तो 1 - 1 + 2 = 1. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द. अब आता है ये पॉइंट, ये बी जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट. क्या कहते हैं, इसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. तो ये जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 फेजेस कोई एग्जिस्ट करते हैं. वाटर एज ए लिक्विड, आइस एंड वाइपर. 3 फेज जो वाटर में होते हैं ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं. जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. तो ट्रिपल पॉइंट पर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो कहता है कि 3 फेज इक्विलिब्रियम है. तो F = here you can calculate F = C - P + 2. C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट. पानी का एक कंपोनेंट सिस्टम है, 3 फेज इक्विलिब्रियम है, तो यू कैन राइट हियर 3 and 2. फाइनली यू विल गेट 0. तो इतनी बातें तो हमने ये किया है कि एक सैलिएंट फीचर दिया है, बहुत इसका डिटेल में बात नहीं की गई है. ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे. कहता है कि वाटर सिस्टम या किसी मोनो कंपोनेंट सिस्टम में क्वाड्रुपल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं. कहता है क्वाड्रुपल पॉइंट, क्वाड्रुपल पॉइंट. जैसे यहाँ पर अभी आपको हमने ट्रिपल पॉइंट बता दिया. ट्रिपल पॉइंट का माने है कि द पॉइंट वेयर 3 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम आर कैन कोएग्जिस्ट. तो कहता है कि 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम, फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम, एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या क्वाड्रुपल पॉइंट होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि F = C - P + 2. अब ये फार्मूला तो है, ये डिराइव्ड है थर्मोडायनेमिक्स से. अब कहता है कि वाटर जो है या कोई भी मोनो कंपोनेंट सिस्टम कह दिया, यहाँ पर लिख दिया है फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम, माने C की वैल्यू 1 है. और क्वाड्रुपल का माने अगर 4 फेज एक साथ कोई एग्जिस्ट करेंगे या इक्विलिब्रियम में होंगे, यह बात हमको कैसे पता चलेगी. तो इस बात को हम करने के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 4 तो 4 कंपोनेंट मान लिया कि हाँ एग्जिस्ट करेंगे और +2. अब देखो आपको क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या मिलेगी. डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या है, 2 1 3 -4 यू विल गेट -1. तो -1 कोई भी वेरिएबल निगेटिव होगा क्या, अरे वेरिएबल कोई नहीं होगा, 0 होगा. लेकिन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें वेरिएबल निगेटिव हो. लेकिन अगर हम कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, 3 फेजेज कोबल इक्विलिब्रियम में हैं या कोई एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं क्वाड्रुपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है.
चार फेजेस क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं? कहता है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आएगी निगेटिव एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ भी ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मोनो कंपोनेंट सिस्टम में कभी भी हम क्वाड्रुपल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा सकते हैं, न होता है। तो इस प्रकार से हमने एक ब्रीफ आइडिया दिया है वाटर सिस्टम का, उसका फेज डायग्राम बताया और किस प्रकार से उस पे हम विभिन्न तरीके से कर्व एरिया और पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।